দেখাত খুব ধুনীয়া লাগিছে সকলোকে কিন্তু আজি আচ্ছা প্ৰথমতে মই সুধিব বিচাৰিছো ইয়াত কোনে কোনে অসমীয়া বুজি নাপায় जो एसएमएस समझते नहीं प्लीज अपना हाथ उठाइए कोई एसएमएस नहीं समझने वाले हैं यहाँ पे एक मैं मुझे दिख रहा है और कितने हैं हाँ तो माइनॉरिटी में है इट्स ओके तो मैं क्या करूंगी दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके मैं आप सभी से बात करूंगी तो पहला जो 3 रोज है जो लेवल ए बी वो लोग आ जाइए क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना बाद में बुलाएंगे उनको और जो अचीवर्स है उनको हम बुलाएंगे स्टेज पर तो बहुत दूर रहेंगे तो उनके लिए भी तकलीफ होगी और हमारे लिए भी हमें भी काफी टाइम लग जाएगा सो সকলো ए बी रैंक प्लीज कम फॉरवर्ड আগলৈ আহক আৰু প্ৰথম 3টা ৰো অকুপাই কৰি লওক আৰু আছে নেকি বাকি अचीवर्स আৰু अचीवर्स আছে নেকি সকলো আহি যাওক থ্যাংক ইউ দেই Chat undur nama. हो गया और कोई है अचीवर আৰু কোনোবা আছে নেকি अचीवर যে এতিয়ালৈ 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ আৰু 1 নম্বৰ এই তিনিটা ৰোড বহা নাই তেওঁলোক আহি যাওক একচুয়ালি আমি স্কুলত কি হৈছিল ন স্কুলত আমি ফ্ৰণ্টত বহিব বেয়া পাইছিলো ন এতিয়া একো তেনেকুৱা নহয় স্কুলত টিচাৰে খুদিছিল সো আমি ফ্ৰণ্টত নবহো পিছৰ বেঞ্চত বহো কিন্তু ফ্ৰণ্টত বহিব সকলোবোৰ লেভেল এ এনেকে ক্ৰমান্বয়ে বহি যাওক আৰু কোনোবা আছে আৰু কোনোবা আছে নেকি আৰু আছে অলপ ফ্ৰণ্টত আহিলে প্ৰবলেম সকলো হৈ গ'ল নেকি দুটা আছে অৱশ্যে সিট কেইগৰাকী আছে আপোনালোক গোটেইখিনি আছে ন গোটেইটো ৰো আহিলে অলপ হ'ব বাৰু একো নাই দৌৰি আহিব লাগিব আপুনি নাচি নাচি আহিব লাগিব নাচি আহিব নে নাই জপিয়াই আহিব পাৰিব একবাৰ ট্ৰাই কৰকচোন মই চাওঁ আমি চাব বিচাৰো নহয় হয়নে জপিয়াই আহিব পাৰিব বোলে তাৰ পৰা হয় নেকি আজি মই আপোনাৰ নামটো কি হেমন্ত দাদাৰ আমি হেমন্ত বৰা তেওঁৰ আমি আজি বেংক জপিওৱা চাম যেতিয়া তেওঁক মাতা হ'ব তেওঁ জপিয়াই দিব বোলে তাৰ পৰা কেইটা ৰো আছে 1 2 3 5 নম্বৰ এনেও বৰষুণ দি আছে নহয় বতৰ কেনেকুৱা পিছে বতৰ ভাল লাগিছে মাজতে খুব গৰম হৈ গৈছিল নহয় কি হ'ল আনসাৰ নিদিয়ে উত্তৰ নিদিয়ে নেকি ভাল ভাল ক'তনো ডেকা ল'ৰা কিমান আছে ইয়াতে এইটো কোৱাচোন হাত দাঙা ডেকা ল'ৰা কিমান আছে বহুত আছে ডেকা ল'ৰা কেইগৰাকীয়ে যদি ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী যে আছে তেওঁলোকৰ বাবে যদি এবাৰ কিৰিলি নাপায় তেনেহলে কিহৰ অসমীয়া আৰম্ভ কৰোঁ নেকি
আজি পিছে সকলোকে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীও আহিছে ফ্ৰণ্টত বহি আছে একচুৱেলি কি হয় জানানে মানে ধুনীয়া মানুহ যেতিয়া বহি থাকে ন ফ্ৰণ্টত চাবলৈ ভাল লাগে যেতিয়া চাবলৈ ভাল লাগে মোৰ পাৰফৰ্মেন্সে ভাল হৈ যায় বাৰু মোৰ নাম দীপশিখা শৰ্মা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এই মিটিংটোত আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন লৈ নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিছে আৰু ময়ো বহুত ডাঙৰ সপোন লৈ আহিছো আমি সকলোৱে ডাঙৰ সপোন লৈ আহিছো নহয় জানো আৰু আজি এই মিটিংখনৰ পৰা মই ভাবো যে বহুত বেছি আপোনালোকৰ বাবে হেল্প হ'ব আৰু আপোনালোক চাগে বহুতেই এজেণ্ট হয় এতিয়ালৈ মানে এতিয়ালৈ ট্ৰেডাৰ হৈ গৈছে হয়নে ইয়াত কোন কোন আছে যোন এতিয়ালৈ ট্ৰেডাৰ নহয় এতিয়ালৈ জড়িত হোৱা নাই YBYৰ লগত কোন কোন আছে যোন এতিয়ালৈ জড়িত হোৱা নাই कौन है जो अभी तक जुड़े नहीं है YBY के साथ কেইজন মানুহে আছে ন বাট সো ইয়াৰ মিনিং হল যে আপোনালোক এটা ফ্যামিলি হয়নে নহয় হয় ন সো আপোনালোকে ইটো সিটো জানিব পাৰে যেনেকে হেমন্ত দা আমাৰ তেওঁ জপিয়াই ভাল পায় তেনেকে মই আৰু কোনোবা ইয়াত আছে নেকি যোনে কিবা কিবি কৰি ভাল পায় আছে নেকি আছে মিটিংখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই ভাবিলো অলপ জনাই দিও আমাৰ হেমন্ত দাই ক'ব বন্ধু আহিছে আচ্ছা উঠি দিয়ক নাম কি বন্ধু গৰাকীৰ কি হয় অৰূপ বৰুৱা অৰূপ দা কওকচোন খাই ভাল পায় কিবা আছে নেকি খাবলৈ খাই ভাল পায় তেওঁ খাই পাইছে ময়ো ভাল পাওঁ অৰূপ দা পিছে আপোনাক দেখি লগা নাই যে আপুনি খাই ভাল পায় ইমান ক্ষীণ ইমান ধুনীয়া বডি কেনেকে হ'ব পাৰে খাই ভাল পাই লগা মানুহ হ'ব লাগিব ন যে লাগিলে লাগে খাই ভাল পায় তেওঁ খাই থাকে পিছে আপুনি কি খাই বেছি ভাল পায় ভাত ভাতটো আমি সবে খাওঁ কিন্তু তাৰ লগত কি খাই ভাল পায় পৰ্ক আৰে গাহৰি আমাৰ জীৱন নহয় গাহৰি ভাত আমি খাব লাগিব আৰু সদায় খাব লাগিব গাহৰি নহব আৰু বতৰটো এনেকুৱা চাগে তেওঁৰ মনতে পৰি আছে ঘৰত বইল গাহৰি বনাই থৈ দিছিলো বেম্বু শ্বুটৰ লগত হয়নে বাঁহ গাজ আৰু গাহৰি আৰু তেওঁ খাব পৰা নাই অৰূপ দা আৰু হেমন্ত দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ টেলেণ্টেড মানুহ আছে নেকি ইয়াত কোনোবা অলপ জানি লওঁ মানুহখিনিক ন সকলোকে টেলেণ্টেড মানুহ আছে কোনোবা গান চান গায় নেকি ইয়াত আছে নেকি আছে গান গাবা নেকি মোৰ লগত এই ল'ৰাটো দেখিছো একদম ধুনীয়া জেকেট চেকেট পিন্ধি আহিছে ইমান গৰম লাগে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে নে এটা শাৰ্ট নেকি দূৰৰ পৰা আকৌ জেকেট যেনহে লাগিছে গান গাবা মোৰ লগত আহা আকৌ আহিব লাগিব এতিয়া ষ্টেজত কি গান শুনিব বিচাৰে আজি আমাৰ মাজত এগৰাকী সিংগাৰ আছে কি গান শুনিব বিচাৰে বা এটা গান আছে নহয় নতুনকে বৰ ফেমাছ হৈছে নিশিগন্ধা ভাগে তন্দ্ৰ মন আকাশৰ মধুচন্দ্ৰা কি নাম তোমাৰ বিপুল তেওঁৰ নাম বিপুল হয় বিপুলে দুখাৰী গান শুনাব আমাক ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি লাগিব দেই তেওঁৰ কাৰণে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বিপুল অলপ আগলৈ আহা যাতে চবকে দেখা পোৱা নাৰ্ভাছ হৈছা নেকি এইখন উল্টাকে লগাই আছে যে চিধাকে লগাই থোৱা লোৱা गाना तो अभी फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ सिंगर बनने के लिए बुधन गो टैलेंट सीजन 2 में मैं फाइनलिस्ट में था तो हार के आ गया वहाँ पे फिर भी मैं हार के आया फिर भी मैं जीता हूँ क्योंकि हर हार के आगे जीत है हर हार के पीछे जीत है गाना तो ट्रेक के साथ नहीं होगा मैं कुछ समझूंगा
डायरेक्ट लाइव होगा हो हो संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं वो चिट्ठी आती है न पूछे जाती है के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं वो चिट्ठी आती है न पूछे जाती है के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू सो मच। বিপুলে কৰবাত হাৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰিত আজি জিকি গ'ল হয় নে নহয় ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বিপুল থেংক ইউ ছ' মাচ বহুত ধুনীয়া গাইছে চ' ইয়াত টেলেণ্টো আছে বহুত হয়নে ইয়াৰ মাজত ইমানবোৰ মানুহ আছে টেলেণ্টটো থাকিবই লাগিব আই থিংক বিপুলে খুব ধুনীয়া এটা গান গালে বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে একচুৱেলি গম পাই তেওঁ ট্ৰেইনড হয় চ' আৰু কোনোবা আছে নেকি আমি এতিয়ালৈ কাক কাক চিনি পালো বিপুলে ভালকে গান গাব পাৰে বুলি জানো হেমন্ত দাই ভালকে জপিয়াই বুলি জানো আৰু অৰূপ দাই আমাৰ তেওঁ ভালকে খাই বুলি আমি জানো এতিয়া বেলেগ কিবা টেলেণ্ট আছে নেকি আজি কিন্তু অৰূপ দাই কিন্তু গাহৰি মাংস খুৱাবই লাগিব দেই কোনোবাই ঘৰত লৈ যাব লাগিব নহলে নহব বেয়া লাগি যাব তেওঁৰ মনটো আৰু কোনোবা আছে নেকি মই কি কৰো এতিয়া মই নাচি দিম নেকি কোনোবাই নাচিব পাৰে নেকি নাই মই গান গাই দিওঁ তাকে বহি বহি এনজয় কৰিলে মই অলপ কালে চাগে কনফিডেন্সটো আহিব আৰু কোনোবা উঠি আহিব কাৰণ মই বেয়া গাওঁ তেওঁলোকে ভাবিব মানুহ সকলোৱে ভাবিব যে তাই কিবা এটা এনেকে বেয়াকে গাইছে যিহেতু আমিও গাব পাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ গান গাওঁ হিন্দী নে অসমীয়া हिंदी गान ओके चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे को खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो तुमने कदम जो रखा ज़मीन पर सीने में घनकार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई এনেকুৱা লাগিলে পুৰণি গান দেই মই পুৰণি গান ভাল পাওঁ খুব এতিয়া চাগে ঘণ্টেক পিছতে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এই মিটিং মই গুচি যাওঁ নেকি নহয় আমাৰ বিনোদাও মাজতে গান গাব তেওঁ ভাল এংকাৰিং কৰে যিহেতু ভাল গান গাবই লাগিব নহয় পিছে মোৰ গানটো কেনেকুৱা লাগিল বঢ়িয়া লাগিল এই মিছা কৈছে চাগে মোক কৰবাত দেখা পাইছে নেকি মোক চিনাকি লাগিছে নেকি নাই লগা ন দেখাই নাই কেতিয়াও আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰত আপোনালোকক দেখি খুব ভাল লাগিছে আজি আচ্ছা আজি যে এই মিটিংটোৰ কাৰণে আহিলে এই মিটিংটোত কি এক্সপেক্ট কৰিছে মানে কি হ'ব পাৰে এই মিটিংটোত কিবা জানেনে কি হ'ব পাৰে একদম ফুলাম শাৰ্ট পিন্ধি আহিছে মোৰ কিন্তু ভাল লাগে দেই ফুলাম শাৰ্ট পিন্ধি আহিলে ল'ৰাবোৰে
কি নাম আপোনাৰ? অঁ, আৰু কোনে ফুলাম চাৰ্ট পিন্ধিছে ইয়াতে বাৰু? হা? আৰ পি চাংমা। অ'কে, চ' তেওঁ এটা ধুনীয়া ফুল থকা শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছে। তেওঁ ভাবিছে যে আজি যিহেতু বতৰটো এনেকুৱা, চ' তেওঁ গুৱাহাটীতে গোৱাৰ ফিল ল'ব বিচাৰিছে, হয়নে? চ' চাংমা দা, আপুনি কি কৰে? বিজনেছটো কৰে, আৰু টেলেণ্ট কি আছে? গায় নেকি? গাই যদি উঠাই দিম আকৌ মই। গাৰো গান গাওঁ, বঢ়িয়া। আমাৰ বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজত আহক আহক, গাৰো গান গাম। আজি গাৰো গান শুনিম নে? বঢ়িয়া। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। লাজ কৰিছে। ইমান লাহে লাহে কইনা টাইপ। তেওঁ শ্ল' মোচনতে গান গাব, বুজিছে নাই? কি গান গাব? গাৰো? হিন্দী গান ভাল পায়, কিন্তু এইমাত্ৰ দাদাই ক'লে গাৰো গানহে গাব বোলে। আমি ইমান মন দি শুনিম বুলি ভাবিছিলো গাৰো গান এটা। গাৰো গানটো ইয়াত এজনো বুজা মানুহ নোলাব। সংগীত বুজা নাযায়, সংগীত কি হয়? ফিল কৰা যায়। কি গাব? গাওক। তেওঁ আৰু নহলে আকৌ লাজ পাই যাব, নাগাব, পলাই গুচি যাব ইয়াৰ পৰা। হিন্দী গানটো মই অকমান মনত কৰিবলৈ অলপ টাইম দিয়ক। তেওঁক মনত পেলাবলৈ টাইম লাগে দেই। আপুনি কি বস্তুত টাইম লয় সেইটো কওকচোন। এনে চবতে টাইম লগায় নেকি? বুজি পোৱা নাই মই। আপুনি ইমান স্পীড কৈছে। মই বোলে আকৌ স্পীডত কৈছো, বুজিয়ে পোৱা নাই। তেওঁৰ লগত সুৰ মিলাই কম। আপুনি আৰু ক'ত দেৰি লগায়? এতিয়াও বুজি পোৱা নাই, এতিয়াও স্পীডত কৈ আছো নেকি? হয়। বিয়া বাৰু পাতিছেনে? পাতিছে। গানটো আহিছেনে মূৰত? মনত কৰিবলৈ আপুনি মকাই দিয়া নাই। আচ্ছা, যদি মই তেখেতসকলৰ পৰা ছাজেশ্যন লওঁ কি গান গাব পাৰি হিন্দী, তেনেহলে আপুনি গাব পাৰিবনে? গান বিলাকক মনত কৰিবলৈ কৈ দিয়ক। কিবা এটা গান মনত পেলাই দিয়ক। মনত পৰিলে নে? নাই পৰা। কোনোবাই হিন্দী গান ছাজেষ্ট কৰকচোন। কৰক। হা? ৰেডে গাম। তেৰে নাম গাই দিলে হয়, কিন্তু তাইৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো নাই। ভাল নালাগিব নহয়। তেৰে মেৰে বীচ মে, বৰ মৰম লগা গান এটা হে। মই যদি প্ৰেমত পৰিব লাগে দিগদাৰ হৈ যাব আকৌ, বিয়া পতা মানুহ। তেওঁ বুজি পোৱা নাই, স্পীডত কলো যে। অলপ নতুন গা, কিবা এটা মনত কৰি দিয়ক। আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো চাই পেলাই মই এটা গান মনত পেলাই দিব লাগে। হেয়াৰ ষ্টাইলটো চাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, এই নতুন গান মনতে নাথাকে নহয়। বৰ অদ্ভুত লিৰিক্স ন আজিকালি। কিবা আছে নেকি? এইটো কি গান আছিলে? পল পল দিল কে পাৰ। এইটো পাৰিব? পাৰিব। तुम रहती है जीवन
पल पल दिल के पास तुम रहती है বিউটিফুল বিউটিফুল বহি দিয়ক আজি তেওঁৰ বহুত এনাৰ্জি গ'ল বহুত কষ্ট কৰিলে প্ৰথমতেতো মোক বুজি পাওঁতেই তেওঁৰ দিগদাৰ হৈ গৈছিল বহুত কষ্ট কৰিলে বুজি পাওঁতে এতিয়াও ধুনীয়াকে তেওঁৰ নিজৰ পেচত খোজকাঢ়ি গৈ আছে চাওঁ বহে কেনেকে এতিয়া তেওঁৰ বহা ষ্টাইলটো চাব বৰ মন তেওঁ গান গাই থাকোতে কোনোবা এগৰাকীয়ে চিটটো লৈ ললে তেওঁ বৰ ধুনীয়াকে বহি আছে মই নাজানো কোন হয় হয়নে আপোনাৰ কি নাম কন্যাজ্যোতি গগৈ বৰ ধুনীয়া নাম ইয়াত নামবোৰ খুব ধুনীয়া আকৌ নহয় তেওঁ একেবাৰে পিছলৈ পঠিয়াই দিলে তেওঁৰ বাবে হাত চাপৰি দেই একদম চিধা পিছলৈ পঠিয়াই দিলে এতিয়া বস্তুটো এইটো হৈছে যে তেওঁ ইমান শ্লো মানুহটো যে যেতিয়া নামটো মাতিম যিহেতু তেওঁ এচিভাৰ হয় যেতিয়া নামটো মাতিম আমাৰ কিমান টাইম কেলকুলেট কৰিলে ইমানলৈ আহি পাব মোক সেইটো কওক যাতে মই অলপ আগতে নামটো মাতি দিওঁ হয়নে কিমানমান টাইম লাগিব 5 মিনিট নাই কম হ'ব 10 মিনিট মান লাগিব ন মই আগতীয়াকে কৈ থম দেই আপুনি ৰেডি হৈ থাকক লাহে লাহে আহি থাকক ঠিক আছে আৰু ক'ত টেলেণ্ট আছে আৰু বিচাৰি ল'ব লাগিব বিচাৰিব লাগিব বাৰু সকলোৱে চাগে YBY ৰ কথা জানেই হয়নে কাৰণ মেক্সিমাম মেম্বাৰ হয় ইয়াত হয়নে জানেনে सो YBY কি কৰে মেইনলি ये क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं करेक्ट तो इसमें अब देखिए ट्रेडिंग तो हर कोई करते हैं ट्रेडिंग ब्रोकर्स बहुत सारे हैं बड़े बड़े ब्रोकर्स है मोतीलाल ओसवाल है 5 पैसा है बहुत कुछ है बट देन YBY ये क्या डिफरेंस है इसमें और बाकी ट्रेडिंग जो ब्रोकर्स है व्हाट इज द डिफरेंस क्या डिफरेंस है की डिफरेंस বস্তুটো হ'ল যে কালি চাগে মাৰ্কেট গম পাইছে কালি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিছিলে মাৰ্কেট কেনেকুৱা আছিলে কোনবা আছেনে নলেজ থকা মানুহ ইয়াত মাৰ্কেট ক্ৰাশ হৈ গৈছিল অলমোষ্ট একদম উঠল পাথল খুব ভলেটাইল ৰাইট আমি যেতিয়া ট্ৰেডিঙৰ কথা ভাবো ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা যেতিয়া ভাবো আমাৰ মাজত বহুত বস্তু আহি যায় যেনেকে লাৰ্নিং প্ৰথমতে আমাৰ শিকাটো বহুত জৰুৰী কাৰণ বস্তুটো হ'ল যে যিমান পায় ষ্টক মাৰ্কেটত সিমান হেৰুৱাইও পেলাব পাৰে বা তাতকে বহুত বেছি হেৰুৱা পেলাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাক লাগে বহুত বেছি নলেজ আৰু তাৰ লগতে আমাক লাগে কি লাগে আৰু কি লাগে আমাক ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব ক্যান্ডেল চাৰ্ট পঢ়িব শিকিব লাগিব হয়নে ইয়াত এইবোৰ কৰোতে 2 বছৰ লাগি যায় সো YBY এই বস্তুটো সহজ কৰি দিছে কেনেকে এই যে ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগে এই যে নিজে ইনভেস্ট কৰি পেলাই নিজে বুক কৰি প্ৰফিট নিজে নিজৰ ব্ৰেইনটো খটাই পেলাই একদম সাংঘাতিক মুৰৰ ঘাম পেলাই যিবোৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ একো কৰিব নালাগে मात्र এটা सिंपल काम কৰিব লাগে आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है वहां पे ऐप में सब कुछ है आपको बस करना है करके जाना है एक ही टाइम में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना ही रिसर्च करने की जरूरत है ना ही खुद से कोई रिस्क लेने की जरूरत है कुछ भी नहीं करने की जरूरत है और डेफिनेटली ये काफी रिस्क फ्री होता है क्योंकि एक जो ब्रोकर है हमारे YBY what it does কি কৰে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰেডিং কৰি পেলাই আপোনালোকক এটা পাৰ্সেন্টেজ প্ৰফিট দিয়ে একদম টাইমত হয়নে এখিনি চাগে বুজি পায় সকলোৱে সো এই যে মুৰৰ ঘামখিনি আপুনি বচাই পেলাই একদম নিশ্চিন্তভাৱে ইয়াত ইনভেস্ট কৰি আপুনি এটা প্ৰফিট গেইন কৰিব পাৰে এইটো হ'ল YBY একদম সিম্পলিফাইড ভাৰ্জন আমাৰ ট্ৰেডিঙৰ
ট্ৰেডিঙৰ সিম্পলিফাইড ভাৰ্জন যেনেকৈ কয় ন এই ট্ৰেডিঙত আমি ইমান পইচা হেৰুৱালো সিমান পইচা হেৰুৱালো কিবা কিবি কৰি পেলাই কিছুমান মানুহ একদম ৰাস্তাত আহি যায় তেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত নহয় কাৰণ ইয়াত ৰিস্ক বহুত কম কাৰণ আপোনালোকে বাছ এটা দুটা বস্তু কৰিব লাগে কাৰণ নলেজ বেলেগৰ কিন্তু সেই নলেজখিনি বেলেগৰ হয় আপুনি খালি এটা ক্লিক কৰি পেলাই ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তাত এটা প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে অট'মেটিকলি সো আপুনি নিজে সেই নলেজটো গেইন কৰিব দৰকাৰ নাই কৰক এতিয়াও টাইম আছে কৰি গৈ থাকক লাহে লাহে কিন্তু এইটো বহুত টাইম কনজিউমিং বস্তু হয় মানে এটা বহুত টাইম লাগে যেতিয়া শিকিব ষ্টক মাৰ্কেট যেনেকৈ মই নিজে 2 বছৰ শিকিছিলোঁ ষ্টক মাৰ্কেট সো মোৰ সময় লাগি গৈছে বহুত বেছি সময় লাগি গৈছে আৰু 2 বছৰ বহুত বেছি সময় হয় কিন্তু আপোনাক 2 বছৰ ইয়াত নালাগে সো একচুৱেলি মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে এইটো একদম সিম্পলিফাইড ভাৰ্জন অফ ট্ৰেডিং আৰু সেই ট্ৰেডিঙত সকলোৱে নিশ্চিন্তভাৱে প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰে যদিও সিমান বেছি কিছুমানে কয় যে মোৰ 1000 টাইমছ বাঢ়ি গ'ল এক ৰাতিত সেনেকুৱা নহ'ব কিন্তু তেওঁলোকে ৰিস্কটো লৈ আছে আৰু কেতিয়াবা হ'বও পাৰে আই ডোন্ট নো মইতো নাজানো কিন্তু বস্তুটো সেইটোৱে আৰু চিম্পল এটা কনচেপ্ট যিটো YBY হয় সো আজি মেম্বাৰখিনি সকলো আছে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকে সকলোবোৰ জানে একচুৱেলি মই যিমানখিনি জানো যে সকলোৱে জানে কি কেনেকৈ বস্তুটো কাম হয় কেনেকৈ সিম্পলিফাইড ভাৰ্জন হয় সেইবাবেতো ইমানবোৰ মানুহ আছে ইমানবোৰ মানুহতো আমাৰ ইনফেক্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈ 1.8 মিলিয়ন মানুহ জড়িত হৈ আছে সেইটোতো লাষ্ট মান্থৰ এক মাহৰ ভিতৰত ইমানখিনি হৈ গৈছে সো 1.8 মিলিয়ন মানে 18 লাখ মানুহ এতিয়ালৈ জড়িত হৈ গৈছে আৰু যদি এইটো সঁচাকৈ ইমান সিম্পলিফাইড তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে জইন কৰি নিশ্চয় ইয়াত লাভ পাইছে এতিয়ালৈ পাইছে এতিয়ালৈ তেওঁলোক যিহেতু বহুত আগৰ পৰাই চাগে জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে লেভেল ইমান ওপৰত A-B সো আপোনালোকৰ প্ৰফিটবোৰ কেনেকুৱা আমি মানে YBY ফুল ফৰ্মটো মানে এতিয়ালৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে কি YBY ফুল ফৰ্ম হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ YBY ওকে YBY হয় তাৰ পিছত আছে VC ব্লকচেইন টেকনলজি কি হয় VC ব্লকচেইন টেকনলজি ব্লকচেইন এটা বহুত ডাঙৰ শব্দ ব্লকচেইনটো আমি সকলোৱে চাগে জানো কৰবাত নহয় কৰবাত শুনিছো যেনেকৈ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি হৈ গ'ল আমাৰ বিটকইন হৈ গ'ল তেনেকুৱা বিটকইন এটা সময়ত মানুহে কৈ আছিল বিটকইন 1 টকাৰ বিটকইন কিনি লওক তেতিয়া 1 টকা চলিছিল বা 10 টকা চলিছিল তেতিয়া মানুহে নিকিনিলে কিন্তু এতিয়া বিটকইনৰ প্ৰাইচ যদি আপুনি ইণ্টাৰনেটত চাই তেনেহ'লে আই থিংক 50 বা 60 লাখৰ মাজত আছে এটা বিটকইনৰ দাম সো সেই বস্তুটো এই মাৰ্কেটটো আমাৰ গ্ৰ'য়িং মাৰ্কেট হয় সো সেইটোতো জানেই চাগে আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি আহি আজি তেওঁ ক'ব কেনে গ্ৰ'য়িং মাৰ্কেট হয় বিটকইনৰ ওপৰত নলেজ নাই বিটকইনৰ ওপৰত মোৰো ইমান নলেজ নাই একো নাই দৰকাৰ নাই নলেজ আমাক নলেজ দৰকাৰ আছে নেকি ইমান আমি খালি জানিব লাগে যে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ক'ত ইনভেষ্ট কৰি আছো কোনটো কোম্পানীত আমি ইনভেষ্ট কৰিছো সো বস্তুটো তেনেকুৱা যে এটা বিটকইন হ'ল ফিউচাৰিষ্টিক মানি মানে ফিউচাৰত যেনেকৈ আমাৰ এটা সময়ত বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আছিল মানে যদি আপুনি দালি 1 কেজি দি আছে তেওঁ আপোনাক চাউল 1 কেজি দিব এটা সময়ত সেইটো চলিছিল তাৰপিছত আমাৰ মাজত কি হ'ল কইনছ অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল ফিজিকেল কইন যেনেকৈ 1 টকীয়া 2 টকীয়া আগতে বাৰু 1 পইচা আছিল হয়নে নহয় তেনেকুৱা টাইপৰ আছিলে সো এতিয়া যিটো পইচা সেইটো ডিজিটেলাইজ হৈ গৈ আছে দিনে দিনে যেনেকৈ এতিয়াতো আমাৰ UPI চলিয়ে আছে হয়নে আৰু তাৰপিছত আমাৰ এটা সময়ত বিটকইন ডিজিটেলাইজ হৈ মানে সেইটো ইউজ হ'ব সো আমাৰ সদায় হিউমেন যিটো আমাৰ কাইণ্ড আমি মানুহখিনি সদায় ইভলভ হৈ থাকোঁ হয়নে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ সো তাৰপিছত কইন আহিল তাৰপিছত লাগিল যে কইনে আমাক ছাপ্লাই নিদিয়ে ইমানখিনি সো নোট আহিল তাৰপিছত যেনেকৈ 100 টকীয়া 200 টকীয়া তেতিয়া সৰু আছিল বাৰু কিন্তু নোট আহিল নোট অহাৰ পিছত এতিয়া চলি আছে বিটকইন বা যিকোনো ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি সো ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো ফিউচাৰত ফিউচাৰিষ্টিক মাৰ্কেট হয় যিটো ফিউচাৰ মানি হয় এতিয়াৰ পইচা নহয় এইটো লাহে 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 যেনেকৈ ডুবাইত আৰম্ভ হৈ গৈছে যে আপুনি কাৰ্ডত যিকোনো বস্তু শ্বপিং কৰিব পাৰে বিটকইন দি বা যিকোনো কইন আপোনাৰ যেনেকুৱা কইন আছে কাৰণ আজিকালি যিটো ডিজিটেল কইন টো খুব চলি আছে আৰু বহুতে সেইবোৰৰ কথা পাতিও আছে যে বিটকইনৰ ইমান হৈ গ'ল সিমান হৈ গ'ল বা ইথেৰিয়ামৰ ইমান হৈ গ'ল তেনেকৈ পলিগনৰ ইমান হৈ গ'ল বহুত কিবা কিবি মাজতে ডোজে কইনো আহিছিল সো এনেকৈ বহুত কেইটা কইনছ আছে
যিবোৰ সাঙুৰ খাই আছে YBY ৰ লগত ঠিক আছে কি মিনিং ফুল ফৰ্ম কিনো মই অলপ আগতে কৈছিলো YBY VC এই পাহৰি গ'লে সকলোৱে হয়নে নাই এই ফ্ৰণ্ট ৰ সুধিম মই টিচাৰ হয় VC ব্লকচেইন টেকনলজি কি হয় লিখি দিওঁ নেকি মই বৰ্ডত লিখিব নোৱাৰো নহয় বৰ্ডত মই বৰ্ডত মইহে ওলাই আছো দেখোন ভাল লাগিছে নে নাই পিছে মই চাব পৰা নাই পিছফালেদি দেখাত ভাল লাগি আছে নে এই নাই লগা সেইকাৰণে লাহে লাহে গৈছে আৰে অলপমান এটা কাম কৰো নাই নাই এনেকে নহব ভাগ্য ভাল দেই এতিয়া মানুহখিনিক দেখাইছে এতিয়াৰ পৰা আমি সকলোকে দেখা পাম ওকে কেইটা বাজিল এতিয়া টাইম কিমান হ'ল 11:30 ওকে এতিয়া আমি অলপ এন্টাৰটেইনমেন্টলৈ আহক মানে আৰু গান গোৱা মানুহ কোন কোন আছে নহলে মই আৰু ইনফৰমেশ্যন খুদিম এটা মই কুইজ কৰি দিম নহলে আৰু কোন কোন আছে গান গাব পৰা মানুহ চাই আছো দেই মই এতিয়া বাৰু লাহে লাহে মোক নেদেখুৱা হৈছে দেখুৱালে ইছ ৰাম আই হোপ মই দেখাত ভাল লাগি আছো বাৰু মইতো দীপলি নহয় মইতো বাৰে বাৰে গান কেনেকে গাই থাকিম বাৰু কোনোবা উঠি আহিব লাগিব নহয় ক'ত মই দীপ শিখাহে দেই আৰু কোন আছে কোনোবা নিজৰ মাজৰ এই পিছফালে যে বহি আছে তেওঁলোকৰ মাজত কোনোবা আছে নেকি ওপৰৰ পৰা বাৰু আহিব নোৱাৰিব জাপ মাৰিব লাগিব আৰু সেইটো মই ৰিকমেণ্ড নকৰো জাপ মৰাটো আৰু ভাল কথা নহব ওকে মই কি কৰো মই আকৌ গান গাব লাগিব গান গাব আহিছে একদম ৰঙা পিন্ধি দেই আজি গান গাব আপোনাৰ নাম এইফালে হওক বিপিন আজি আমাৰ মাজত আহিছে তেওঁ গান গাব এটা কি গান গাব দেশভক্তিৰ গান এটা গাব বঢ়িয়া হেল্ল' সকলো YBY মেম্বাৰসকলক মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো এটি দেশভক্তি গান মই গাবলৈ ওলাইছো যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব ए मेरे वतन के लोग तुम खूब लगा लो नारा जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर ना आए
ধন্যবাদ। হো না 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 লে না 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 রে না 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 ধরা না 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 ধরা না 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 ধারি রা রা রি রে ধারি রা রা রি রে হিয়া দিয়া নিয়া। ধন্যবাদ। ৱাও, ইমান ধুনীয়াকে গান গাইছে নহয় জানো বিপিন? বিপিন আছিল ন? বিপিনে বৰ ধুনীয়া গান গাইছে। আজি ৰঙা পিন্ধি আহি সকলোকে ৰঙা দেখাই দিছে। বাপেকে চিনি পোৱা নাই ন? চ' এতিয়া আমাৰ মিটিংখন আৰম্ভ হ'ব। এই মিটিংখন বহুত দৰকাৰী। আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাব। আৰু তেওঁ আমাৰ মিটিংখন আগবঢ়াই লৈ যাব, কাৰণ তেওঁৰ নলেজ বহুত বেছি আৰু মোৰ নলেজ অলপমান তেওঁতকৈ কম। অলপ নহয়, বহুত কম। নে কি কয় দাদা? नहीं नहीं तरीका কথা নহয়, छोटा से भी ज्ञान लेना चाहिए। बड़ों से हमेशा आदर के साथ रहने से उससे भी ज्ञान मिल सकता है। और ज्ञान से, हाँ, ज्ञान से थोड़ा बहुत कुछ फर्क आ सकता है, अलग बात है वो। और जीवन ही एक जो लाइफ इज लर्निंग बोला गया है ना, सारा जीवन सीखने से भी आदमी का समाप्त नहीं हो सकता है, जो ज्ञान का सागर जो होता है। तो ये है हमारे विनोद ताती जी, ठीक है? तो इनसे मुलाकात कीजिए। शायद आप सभी जानते हैं इनको। और अब पहले तो वो एक गाने से शुरुआत करेंगे। হয় না, গাবই লাগিব আজি, হয় নে? আজি বিনোদ দাদাৰ গান শুনিম। প্ৰথমে দুখাৰী গাই পেলাইহে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মিটিং, নহ'লে আমি নিদিওঁ ন কি? কাৰেক্ট। মই দীপশিখা শৰ্মা বাইদেউক ধন্যবাদ দিছো। ইমান সময় আপোনালোকক তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে ইমান সময় বহি আমনি নাপালে। আৰু মোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে বোলে মই যিখিনি কৰোঁ তাৰ আগতে এটা গান গাব লাগে। চাওক, মই অকণমান ধৰ্মপ্ৰিয় মানুহ দেই, মই ভগৱানৰ বিশ্বাসী মানুহ। তো মোক গান গাবলৈ দিছে, মই জানো বেছিকে ভক্তি গানবিলাকে বেছিকে জানো। এটা কৰোঁতো কি কৰোঁ, হা? তথাপিও যি হওক, ইয়াত চবেই আছো আমি। আমাৰ হিন্দুস্তান দেশ ধৰ্মপ্ৰিয় দেশ বুলি আমি চবেই জানে। চবেই আমি ঈশ্বৰক মানো। নিজৰ নিজৰ ভাৱ ভক্তি বেলেগ আছে, যদিও আমি আস্থা ৰাখোঁ ভগৱানৰ ওপৰত। যি হৈ আছে আমাৰ জীৱনত, যি ঘটি আছে, যি পাই আছো, আমি চবেই তেওঁক থেংক ইউ দিছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁৰ কাৰণে হৈছে বুলি আমি কওঁ। তো সেয়ে মই যিহেতু আমি আজি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ, আপোনালোকে বৰ বেছিকে মানে চিৰিয়াছ নহ'ব। ঢেৰ কিবা এটা আমাৰ বহুত মানে কিবা এটাত গৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা নাভাবিব। ইয়াত আহিছোঁ আমি চবেই একে নিজৰ জেগাৰ মানুহ হয়। আমাৰ অসম
অৰুণাচল নাগালেণ্ড এনেকৈ এৰিয়াৰ কিছুমান আহিছে আমাৰ বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা তেখেতসকলক মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ আমি ইয়াত YBY বিষয়ে কিছুমান ডিটেইলছ আমি ইয়াৰ পৰা নলেজ লৈ যাম YBY আমাক কি দি আছে আমি আপোনালোকৰ পৰাও সেইখিনি অলপ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম লগতে আজি যিসকলে এচিভাৰ হৈছে তেওঁলোকে YBY তেখেতসকলকো আমি সন্মান জনাম সেইখিনি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ মানে অভাৰঅল মিটিংখন আমি চেষ্টা কৰিম যে ধুনীয়াকৈ আমি এটা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি তাৰ মাজেৰে YBৰ মানে আমি কথাখিনি চবে অৱগত হয় ইয়াক আকৌ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে আমি প্ৰয়াস কৰিম মই সেইটো ভাবোঁ এটা মানে এটা কথা আছে নহয় কোনো বস্তুক মানে हर चीज को মানে খেলকে জেসা লেনা चाहिए খেলৰ নিচিনা ভাবিব লাগে সিৰিয়াছ হ'ব নালাগে তেতিয়া মানে সেই কামটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা যায় ৰুচি যদি থাকে তো আজি হওক আমাৰ বাইদেউ মোক সৰুকে গান এটা গুণগুণাব দিছে মই এটা ভক্তিৰ এটা লাইন যেটা সকলো কাম ডেডিকেটেড টুৱাৰ্ডছ গড হ'ব লাগে আমাৰ কামবিলাক মানে তেওঁৰ ব্লেছিঙত যে হৈ আছে বুলি ভাবিব লাগে মানে সেইকাৰণে মই এটা গুণগুণাওঁ শুভাৰম্ভ কৰাৰ আগতে মিনিংটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই যিটো হিন্দীত ভক্তি গানটোৰ শ্লোক প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো যিটো মই গুণগুণাম আপোনালোকে তাক ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব तुम जो देते हो मालिक वही अच्छा है मेरी चाहत ने मारा है अंधियारे में ज्योति प्रकाश का तुमसे ही तो सारा है सुनो रे भाई ओ मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई ओ मेरे मालिक जगत के नाम उन्हीं दयाल का शरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का शरण पकड़ ले काल करे ना घा ओ मेरे मालिक जगत के नाम सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम सुनो रे भाई ओ मेरे मालिक जगत के नाम ओ मेरे मालिक जगत के नाम थैंक यू যাই হোক মই চেষ্টা কৰিলো বাইদেউৰ মানে এনাউন্স কৰি দিলে গাব লাগে বুলি আমি এতিয়া কাৰ্যসূচীখন আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছো আমি ইয়াত আজি অসমীয়াত যে কৈ আছো অসুবিধা পাই আছে নেকি কিছুমানে অসমীয়াটো বুজি পাবই মেক্সিমাম হিন্দীত কম নেকি হিন্দী বা অসমীয়া যদি আনকমফৰ্ট যিটো আপোনালোকে বিচাৰে দুই ধৰণে আমি দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ কৰিম অসমীয়া আৰু হিন্দী আমি অসমবাহিক হিন্দী অসমীয়াটো আমি জানিমে তথাপি কিছুমানে হয়তো হিন্দীত বেছি ভালকে বুঝি পায় कोशिश करेंगे दोनों भाषा का यूज करने के लिए हिंदी हम लोग का नेशनल लैंग्वेज ही है अभी तो मैं सबसे पहले हम लोग का आसाम का दूर दूर से यहाँ पे जो पधारे हुए साथ में आसाम से बाहर हमारा पड़ोसी मुल्क पड़ोसी राज्य जो अरुणाचल और नागालैंड से भी आया बोल के हमको पता चला है जितने भी यहाँ पे YBY में जुड़े हुए जितने भी लोग और जो नहीं जुड़े हुए वे भी आज इस इवेंट में पधारे सबका हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं इस मीटिंग पे YBY इवेंट ऑफलाइन इवेंट में
और एक मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग इतना दूर से आए हैं, रात भर ड्राइविंग करके आए हैं, सफर करके आए हैं, जैसा भी हो आप लोग इतना कीमती वक्त निकल के आए, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ मनसा से यहाँ पे आप लोग पहुंचे, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत तकलीफ झेल के भी आए होंगे, किसी का नींद भी आज क्षति हुआ होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर से आए हैं, तो इसलिए पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतना वक्त निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। जैसा भी हो, कोई बच्चा लेके आया है, बहुत एजेड लोग भी है, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे बता रहे हैं। ये जो YBY, मैं पहले इसका पहले एक मीटिंग किया था अरुणाचल में, अरुणाचल चंद्रनगर में, वहां पे कुछ सीमित लोग गए थे वहां पे, तो वहां पे मैं बताया था कि ये जो YBY बोल के जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग सबको पता है, आजकल मैक्सिमम ज्यादातर लोगों ट्रेडिंग करते हैं कोई शेयर मार्केट में। बहुत सारा ऐसा जो ब्रोकर एप्स होता है, जैसे जीरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो, LS Blue हो गया, बहुत ऐसा अभी ऑप्शन है, उसमें ट्रेडिंग करते, खुद इन्वेस्ट करके अपना एनालाइज के द्वारा या किसी गाइड को लेकर वो लोग ट्रेडिंग करके 2 पैसा वहां पे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन YBY में थोड़ा सा खासियत, एक इसको डिफरेंस ये बनाता है कि YBY हालांकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने से यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हम लोग को अलग से इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। खुद का ज्यादा दिमाग लगाना, जो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे रहेगा मार्केट, मार्केट का आज रुख क्या होगा, ये सब चीज के लिए हम लोग को इसमें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। केवल और केवल हम लोग एक दिन में रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच 1 घंटा जो टाइम रहता है, उस समय में हम लोग को कम से कम 2-3 मिनट समय निकालना पड़ता है, और उसी से हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट रहता है, उस इन्वेस्टमेंट का हिसाब से और अपना जो इसमें जो लेवल दिया गया है, उस लेवल का हिसाब से एक परसेंटेज अमाउंट मार्केट पे थोड़ा टाइम के लिए लग जाता है, उसमें ट्रेडिंग में लग जाता है, और वहां से जो भी परसेंटेज होता है, जिसका जैसा रहता है, जैसे 6% से 12% हाईएस्ट इसमें दिया गया है, उस हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट मिलता है। ये तो सबको पता है, मैं फिर भी उसको थोड़ा अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि सब लोग यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे बहुत जानकारी है उनको, कि इसमें अभी जो इसका जो इन्वेस्टमेंट रखा है कंपनी ने 6,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम आपको वॉलेट में दिखाई देगा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी इसमें अगर ज्वाइन करता है 6,000 से 6,000 अगर इन्वेस्ट करता है, तो फर्स्ट टाइम अगर वो एक भी अगर आदमी नहीं देता है, यानी उसका अंदर में कोई भी आदमी को अगर वो डाउनलाइन पे ज्वाइन नहीं कराता है, प्रमोट नहीं करता है, तो उसका क्या है, जीरो लेवल पे, मतलब उसको जीरो लेवल कहा गया है, जीरो लेवल रिचार्ज कहा गया है, तब उसका अमाउंट का 6% ही पैसा मार्केट पे यूज होगा थोड़ा टाइम के लिए। ये पहला शर्त है, पहला इसका कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर पहले ज्वाइन करता है 6,000 रुपया देके, 6,000 देगा या 10,000 से ज्वाइन करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, तो उसका जो मार्केट पे जो यूज होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच। मैं इसके पहले थोड़ा बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो सिस्टम बनाया है कंपनी ने, इसमें 2 तरीके से हम लोग को सपोर्ट करता है, कंपनी गाइड करता है। पहला हो गया, अगर कोई व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उसको एक ऑप्शन तो मिलेगा, जो एप्स होता है YBY का जो एप्स होता है, एप्लीकेशन जो है, उसमें कुछ ऑप्शन रहता है। पहले आपको डिपॉजिट दिखाई देगा, विथड्रॉ दिखाई देगा, इस तरह से रहता है। चैनल बोल के एक रहता है, चैनल का साथ में आपका सर्विस बोल के रहेगा। तो चैनल जो शब्द है, चैनल जो ऑप्शन है, वहां पे क्या होता है, 8:30 बजे कंपनी की ओर से एक सिग्नल मैसेज प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग सिग्नल बोल के। और ये जो YBY जो है, जैसे हम लोग शेयर मार्केट पे, जैसे मान लीजिए हम लोग शेयर मार्केट हम लोग जो सुने हैं,
वहां पे स्टॉक खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, ये सब चीज चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, YBY में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में ट्रेडिंग चलता है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बोलने से सबको पता नहीं हो सकता है, ले जो इंटरनेशनली जो करेंसी होता है क्रिप्टो का, जैसे बिटकॉइन का बारे में आप लोग सुना है, ऐसा बहुत सारा करेंसी होता है। तो कंपनी ने इसमें 10-15 क्रिप्टो करेंसी का लिस्ट आप लोग को देखने में मिलेगा जब आप लोग एप्स को ऑन करेंगे और मार्केट बोल के जो ऑप्शन रहता है उसमें अगर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन निकलता है, कुछ नाम निकलता है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो का मतलब होता है अदृश्य, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है। क्रिप्टो का मतलब दिखाई नहीं देगा, उसका मतलब डिजिटली दिखाई देगा आपको, लेकिन उसका फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा, आप उसको छू नहीं सकते। जैसे हम लोग कोई भी रुपया, हम लोग अगर बोलेंगे 50 रुपया या 100 रुपया हम लोग का जो होता है तो वो नोट आपको दिखाई देगा, हम लोग इंडियन करेंसी। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिजिटली काम करेगा, उसका लोगो आपको दिखाई दे सकता है, लोगो उसका इमेज दिखाई दे सकता है कि बोले बिटकॉइन का इमेज ये हो गया। आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो लोगों को पता होगा, बहुत सारा उसमें क्रिप्टो करेंसी का नाम है, जैसे ITC हो गया, ICP हो गया, मेटिक हो गया, पॉलीगॉन हो गया, XMR हो गया, ये सब बहुत सारा नाम है। तो ये सब का एक लोगो आप लोग को दिखाई देगा, लेकिन वो मार्केट पे अवेलेबल नहीं रहेगा कि हम लोग उसको लेके घूमे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहा गया, डिजिटली वो यूज होता है, डिजिट पे रहता है वो चीज। तो ये जो YBY जो है प्लेटफॉर्म जो है, इसमें क्रिप्टो करेंसी का ऊपर में ट्रेडिंग कराता है, जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है। तो कंपनी 1 घंटे के लिए समय इसका निर्धारण किया है। 1 घंटा में जितने भी यूजर्स होते हैं, इनका जितना भी मेंबर्स होते हैं, उस 1 घंटा पे जो लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, चैनल जो हम लोग का ऑप्शन रहता है वहां पे ट्रेडिंग सिग्नल बोल के एक मैसेज जनरेट करता है। और दूसरा हो गया एक व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ा जाता है। व्हाट्सएप के द्वारा भी वो मैसेज प्राप्त कर सकते हैं कि 8:30 बजे कि आज मुझे कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा करेंसी के ऊपर पे लगाना है, कौन सा करेंसी को हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मार्केट पे क्लिक कर देते हैं तो वहां पे लिस्ट आ जाता है, तो उसमें जो सिग्नल के अनुसार ट्रेडिंग सिग्नल जो होता है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ट्रेडिंग सिग्नल लिखा रहता है, ट्रेडिंग सिग्नल का बाद में लिखा रहता है प्रोडक्ट बोल के रहेगा, और रेड कलर पे लाल रंग पे उसका नाम लिखा रहता है, जैसे ICP हो गया, XMR हो गया, जो भी रहेगा। और नीचे रहेगा डायरेक्शन बोल के, मतलब कॉल या पुट, ये 2 शब्द ही उसमें यूज होता है डायरेक्शन में। किसी दिन कॉल रहेगा, किसी दिन पुट रहेगा। कल आप लोग ट्रेडिंग किए तो आपको पता है कल पुट दिए था, उसमें पुट ऑप्शन आया था। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो कॉल और जो पुट जो लिखा रहता है, ये कॉल और पुट का शेयर मार्केट में इसका जो मीनिंग जो होता है, कॉल का मतलब होता है जनरली ट्रेडिंग में जब आप कोई भी स्टॉक या शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट में, वो जिस दिन ऊपर जाएगा उसका जो वैल्यू रहेगा, उस शेयर का या स्टॉक का जो वैल्यू रहता है, जिस दिन ऊपर जाएगा, हाई जाएगा उसका वैल्यू, तब आपको कॉल साइड पे अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी शेयर मार्केट में जनरली आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का वैल्यू नीचे जाएगा तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, अगर ऊपर जाएगा तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको शेयर मार्केट की समझ होना चाहिए कि आज ये शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो जानकारी रहने से आप लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं। ठीक उसी तरह जब किसी भी शेयर का वैल्यू ऊपर जाने का नौबत है, आपका एनालिसिस, आपका नॉलेज अगर बोल रहा है कि ये शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तब आपको कॉल साइड पे शेयर मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे वैल्यू ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, और अगर कॉल साइड पे लगा दिए, अब वैल्यू नीचे गिर रहा है तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, उस समय आपको लॉस होना पड़ेगा। और आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि कोई भी शेयर का वैल्यू नीचे जाना वाला, डाउन जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा,
तो उस दिन आपको पुट साइड पे खरीदना पड़ेगा शेयर को, स्टॉक को। तो अगर उस दिन आपका एनालिसिस ठीक बैठ गया, अब मार्केट नीचे जा रहा है, पुट साइड पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा उस समय। तो ये शेयर मार्केट में कॉल और पुट ऑप्शन बोला जाता है। ऐसे उसको ट्रेडिंग में सी और पी बोला जाता है। लेकिन हम लोग इजी करने के लिए डायरेक्ट कंपनी ने क्या किया है, जो ऑप्शन बनाया डायरेक्ट कॉल बोल के लिखा रहता है, CALL कॉल और PUT पुट लिखा रहता है। तो जब भी कंपनी क्या करता है, हम लोग को 8:30 बजे जैसे हो जाता है तो एक मैसेज हम लोग को पहुंचता है, मिलता है, सबको ये पता है। वो मैसेज में लिखा रहेगा प्रोडक्ट नेम, किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी का नाम रहता है, क्रिप्टो करेंसी के नाम जो भी रहेगा। कल में क्या दिया था भैया, कल प्रोडक्ट का नाम क्या था, ICP और कॉल था। तो जैसे ICP करेंसी का नाम हो गया और डायरेक्शन माने हम लोग किधर पे इन्वेस्ट करने के लिए बोला, कॉल साइट पे। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर वो मैसेज पढ़ने के बाद में हम लोग आके फिर वहां से बैक होकर जो ऐप से एप्लीकेशन जो है वहां से बैक होना और मार्केट पे जाके मार्केट पे जब क्लिक कर देते हैं तो चार्ट एक निकल आता है। तो वहां पे हम लोग सभी ने ICP को सिलेक्ट किया। ICP पे जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो वहां पे नीचे दिखाई देता है, ग्रीन कलर पे कॉल लिखा रहता है और रेड कलर पे पुट लिखा रहता है। तो पुट ऑप्शन हम लोग को दिया गया था मार्केट की तरफ से। पुट पे जब क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है, कोई 6,000 से शुरू किया है, कोई 10,000 से, कोई 20,000 से, यानी आपका वॉलेट में जितना भी डिपॉजिट रहता है उसका आपका रैंक का हिसाब से, अगर आप पहले ज्वाइन किया है और किसी भी आदमी को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप 6% का रैंक पे आपका पैसा मार्केट पे लग जाएगा। जितना भी कैपिटल रहेगा 6% उसका। और एक आदमी अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो कैपिटल रहेगा उसका 7% मार्केट पे लगना शुरू हो जाएगा, 7%। तो यहाँ पे कंपनी ने एक थोड़ा सा अनकॉमन एक चीज किया है कि आप इसमें आदमी ज्वाइन कराने से वन टाइम जो आपको कुछ एक कमीशन कुछ बहरा देता है कि आपने कंपनी के लिए काम किया, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए आदमी को जोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे लिमिट कर दिया है, लिमिट सिस्टम है कि कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 5 लाख रुपया लगा दिया इसमें, 6% तो मेरा वो होते रहेगा, तो 5 लाख का 6% 30,000 हो जाएगा। उसमें मार्केट में वो ऑटोमेटिक जेनरेट मतलब जब सिग्नल देता है उस समय लग जाएगा और मुझे बढ़िया प्रॉफिट होगा, वो नहीं होने वाला है इसमें। इसमें आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, रुकिएगा। इससे पहले 8 मई के पहले मतलब क्या था, जो ट्रेडिंग रेशियो था, ट्रेडिंग परसेंटेज जो था, अगर कोई व्यक्ति पहले अगर 6,000 रुपये से ज्वाइन करता है या उससे कम था, 6,000 पहले मिनिमम जो ज्वाइनिंग उसका जो वैल्यू था 3,000 रुपया था, 1,500 भी था, ऐसा था, और धीरे धीरे बढ़कर अब मिनिमम में आ गया है 6,000। तो उस समय जो ट्रेडिंग परसेंटेज था 2,000 रुपये, 2,000। यानी कोई व्यक्ति, कोई मेंबर अगर चाहे वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करे, अगर किसी आदमी को अगर ज्वाइन नहीं कराया है तो उसका कैपिटल का केवल 2,000 रुपया ही मार्केट में यूज होगा। चालाकी नहीं कर सकता कोई इसमें कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊं, किसी को डाउनलाइन मतलब नहीं दूंगा। चाहे जितना भी हो जाए, लास्ट में कंपनी उसको फिक्स कर देगा 5,000 रुपया। उसका मैक्सिमम 5,000 रुपया ही मार्केट में यूज होगा, चाहे जितना भी पड़ा रहे। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया उसका अगर डिपॉजिट है, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 6% कितना होगा, 6,000। तो आदमी तो सोचता रहे कि मेरा 6,000 लग जाएगा तो मुझे उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नहीं लगेगा, 6,000 नहीं, 5,000 लगेगा। 2 लाख रुपया है किसी का, मान लीजिए 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, किसी ने सोचा कि ना मैं कितना लोगों को बोलूंगा, मैं अपना पैसा ही इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा से जुड़े, जितना लोग जुड़ेंगे उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट में, कंपनी जिंदा रहेगा। मैं एक बात बोलना भूल गया, आज एक बहुत ही
शुभ दिन है 5 जून, है कि नहीं? ये हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ है ये चीज। और ये 5 जून जो तारीख जो है, इसका जो महत्व अगर देखा जाए, YBY का साथ भी इसका एक कनेक्शन बनता है, वो मेरा मानना है। मतलब क्या कनेक्शन है मैं बता रहा हूं। 5 जून आज किस क्या दिवस मनाया जाता है? आज परिवेश दिवस, हाँ, एनवायरमेंट डे, है कि नहीं? तो देखिए, परिवेश दिवस हम लोग सबको पता है, आज का दिन में सबसे ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। सरकार ने बनाया, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, विश्व परिवेश दिवस। ये विश्व परिवेश दिवस क्यों बनाया गया? क्योंकि विश्व संस्था जो है, तो यही संदेश आज का दिन आपको टीवी में दिखाई देगा, सब तरफ आज यही मैसेज न्यूज चल रहा है कि परिवेश दिवस में। तो मैं कहना चाहता था कि ये जो परिवेश दिवस है, ये एक्चुअली कॉन्शियस करने के लिए बनाया गया, हम लोग को जागरूक करने के लिए बनाया गया है कि हम लोग, इंसान जो है सबसे डेवलप में आता है। जितना भी जीव प्राणी जो है इस दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ जीव माना गया है इंसान को। इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान को भगवान ने ये बुद्धि दे डाली है, ज्ञान दिया है। हम लोग उसको नुकसान कर रहे हो, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। नेचर के खिलाफ हम लोग जितना जाएंगे, हम लोग के लिए इतना डेंजर होता जाएगा, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला समय में। इसलिए परिवेश का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीमार, इस तरह का आजकल बीमार दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको कितना क्रिटिकल बीमार पहले से दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग निजी स्वार्थ में इतना घुस गए हैं कि दूसरों का सेव करना चाहिए, दूसरों को बचाना चाहिए, ये चीज हम लोग भूल गए कि पेड़ पौधा जीव जंतु जो है वो इंसान के ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग का ऊपर में वो लोग डिपेंड कर निर्भर करके है। हम लोग से ही वो लोग बच सकते हो, उन लोग को सेव करना है, बचाना है। तो आज जो परिवेश दिवस है कि जैसे पेड़ अगर रहेगा तो हम लोग बच पाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा भाई, पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का क्राइसिस हो जाएगा। और आपको पता है हम लोग को जितना भी हम लोग है, को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पेड़, यानी पेड़ बचाओ जिंदगी बचेगी। ठीक उसी प्रकार YBY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज हम लोग का सोच थोड़ा बदल दिया सबको कि किस तरह से अर्निंग हो सकता है जीवन में, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। कंसेप्ट हम लोग को थोड़ा बदल दिया कितना तेजी से। जो हम लोग को इम्पॉसिबल लग रहा था, जो हम लोग को असंभव लग रहा था, कठिन लग रहा था, नहीं हो पा रहा था, लेकिन YBY में जुड़ने के बाद में पता चला अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है क्या, इतना मतलब फास्ट अर्निंग हो सकता है क्या। सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया सबका। तो YBY को जिंदा रखने के लिए ये जो कंपनी का जो सिस्टम है, लोगों को जोड़ना, जितना लोगों को हम लोग जोड़ेंगे YBY उतना ही हम लोग के लिए काम करता रहेगा, और उतना हम लोग वहां से जी पाएंगे, उससे हम लोग को फल मिलेगा। अगर जो एनवायरनमेंट डे है, इसी बीच हमारे जो YBY से जुड़कर जो भी मेंबर्स जुड़े थे पहले, आज वो लोग अपना मेहनत के बलबूते पर, अपना काम के द्वारा निष्ठा से, इतना ईमानदारी से इसको निभाया है YBY से। और कुछ यहाँ पे जो रैंक है, इसका जो लेवल है, वो लोग अचीव किए हैं। तो हमारे पास कुछ मेहमान हैं, मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि वो लोग हमारे मंच पे आके आसन ग्रहण करें। मैं पहले उन लोगों का नाम घोषणा करना चाहता हूं जो लेवल ई पे पहुंचे हुए हैं। पहले मैं बुलाना चाहूंगा जो लेवल ई पे पहुंचने पे सक्षम हुआ है, मिस्टर साहिब बसुमतारा जी। साहिब बसुमतारा जी, आप जहां भी है, कृपा करके आप हम ये है देवराम सरगेरे जी, जिन्होंने ई लेवल अचीव किया है। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिथिंगा नारदारी जी, जिन्होंने ई लेवल अचीव करने में सक्षम हुआ है। आसन ग्रहण करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पंचानन बसुमतारी जी, जो ई लेवल अचीव किए हैं। पंचानन बसुमतारी जी, बैठिए सर।
और YBY में जो सोच से भी बाहर हम लोग नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा एक कारनामा कर बैठे हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस एरिया से हूँ जिन्होंने ये मुकाम जो हासिल किया, YBY का जो आखिरी लेवल माना जाता है, एस लेवल अचीवर, इस समय मैं उनको बुलाना चाहूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरा दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे सभी हाथ तालियों से। मिस्टर अनिरम बसुमतारी जी एस लेवल अचीवर है, जिनका बदौलत आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कृपया करके आसन ग्रहण करें और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। तो मैं आप सभी से बता रहा था कि जो मेहमान है लेवल E और लेवल S, हमारे असम का भी नंबर 1 पोजीशन पे जो है मिस्टर अनिरम बसुमतारी जी सर। मैं और एक हमारे बीच जो है आज ये जो गुवाहाटी पे जो प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बहुत ही उन्होंने अपना योगदान दिया है इस गुवाहाटी का मतलब इस इवेंट को अरेंज करने में, और उन्होंने रिसेंट गुवाहाटी से पहला C लेवल अचीव करने में सक्षम हुआ है मिस्टर अमजद हुसैन जी। मैं उनको भी इस मंच पे बुलाना चाहूंगा, जो इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए आपने बहुत कीमती वक्त दिया है। सर आइए बैठिए। जो गुवाहाटी का फर्स्ट C लेवल अचीवर है और उन्हें बहुत लोगों को जोड़ा है और बहुत लोगों को इनवाइट किया है इस मीटिंग पे। तो मैं इससे पहले YBR के बारे में जो बता रहा था, तो जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम जो था, किसको कितना प्रॉफिट होने वाला था, उसका ऊपर में मैं एनालाइज कर रहा था, आप लोगों के सामने उसको खोल के बता रहा था कि कंपनी जो नियम बनाया है, अगर कोई व्यक्ति 6,000 रुपया से अगर शुरू करता है तो उसको उसका जो ट्रेडिंग परसेंटेज रहेगा, चाहे वो जितना भी इन्वेस्ट करे, अगर कोई आदमी नहीं जोड़ता है तो केवल 5,000 रुपीज से उसका ट्रेडिंग पे लग जाएगा। चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख पड़ा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी ने उसका 6% दिया है, लेकिन उसका एक सिस्टम बन जाएगा, बाद में फिक्स हो जाएगा, केवल 5,000 रुपीज से उसका ट्रेडिंग पे लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी चाहता है कि आपका पैसा का बात नहीं कि आप आदमी जोड़ो, कंपनी चाहती है कि आप प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको बांटो, बताओ, तभी इसमें आप और ज्यादा बेहतर मतलब प्रॉफिट इसमें कर पाएंगे। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति, कोई मेंबर एक आदमी को जोड़ता है फर्स्ट टाइम, तो उसका जो ट्रेडिंग परसेंटेज हो जाएगा 7, उसका कैपिटल का 7% पैसा जो है मार्केट पे लग जाएगा उस समय से। अगर एक आदमी देने के बाद 1 से 2 आदमी यानी 3 आदमी कंप्लीट नहीं किया है, 2 आदमी अगर होता है तो भी उसका 7% ही उसका मार्केट पे यूज होगा। अगर वो उसी पे रह जाएगा, उससे आगे अगर काम नहीं करेगा, मान लीजिए किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बैठे बैठे है वैसा, तो तब उसका कंपनी क्या करेगा, उसको भी एक समय में फिक्स कर देगा। कितना फिक्स कर देगा? 6,000 रुपीज। अगर उसका 1 लाख रुपया पड़ा है और वो एक आदमी को जोड़ा है, हालांकि 7% उसमें अचीव किया है, लेकिन उसका जो ट्रेडिंग रेशियो रहेगा वो 6,000 रुपये ही रहेगा टोटल। 7% 1 लाख रुपया होने से 7,000 लगना चाहिए, लेकिन 7,000 रुपये मार्केट में नहीं लगेगा, 6,000 लगेगा, ये ध्यान में रखिए। तीसरा, अगर 3 आदमी जब हो जाता है, अपना नीचे में अगर 3 आदमी को डायरेक्ट जोड़ता है, तब उसका ट्रेडिंग परसेंटेज होता है 8%।
ट्रेडिंग रेशियो जो है 8%, यानी कैपिटल का, अपना कैपिटल का 8% रुपया जो है मार्केट पे लग जाएगा। तो 8% होने से अगर मान लीजिए 3 आदमी लगा के और काम नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, किसी को नहीं जोड़ रहा है, तब क्या हो जाएगा? तब उसको कंपनी 1 महीना जैसा समय मिलेगा उसको, उसके बाद में अगर नहीं जोड़ पाएगा तो 7,000 ही, मतलब 7,000 रुपया ही उसका मार्केट पे लगेगा। तब चाहे 3 लाख पड़ा रहे, चाहे 5 लाख पड़ा रहे, ये कंपनी ने फिक्स किया है। 4 नंबर जो रूल है, अगर 3 से 6 आदमी तक पहुंचने में 3 आदमी लगाया, उसके बाद में 4 नंबर आदमी जोड़ा, 5 नंबर आदमी भी जोड़ा, लेकिन 6 नंबर आदमी जोड़ नहीं पा रहा है। जिस दिन 6 नंबर आदमी जोड़ देगा तो वो पहुंच जाएगा 9% पे, 9% पे, यानी उसका कैपिटल का जितना भी डिपॉजिट मनी रहेगा उसका 9% पैसा जो है मार्केट पे लगना शुरू हो जाएगा। तो 9% जो लगेगा तब तो ठीक रहेगा, लेकिन वहां भी कंडीशन है, और 6 आदमी जोड़ने के बाद में और नहीं जोड़ रहा है किसी को, तो उसका भी कैपिटल क्या होगा, बाद में फिक्स कर दिया जाएगा। जो ट्रेडिंग रेशियो है उसमें आ जाएगा आपका 9%, हालांकि रहेगा, लेकिन जो पैसा मार्केट पे लगेगा मैक्सिमम 8,000 ही लग पाएगा। 8,000 का रुपया में उसका ट्रेडिंग और प्रॉफिट मिलेगा, उसका ट्रेडिंग लग जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्या होगा अगर वो कोशिश करेगा, कोशिश करते कैसे, 6 आदमी के बाद में जिस दिन वो 12 आदमी जोड़ देता है डायरेक्ट में, अपना डायरेक्ट में 12 आदमी अगर जोड़ देता है, तब क्या हो जाएगा, उसका 10% कैपिटल से ट्रेडिंग करना शुरू हो जाता है, ट्रेडिंग में लग जाएगा। अपना कैपिटल का 10% जो है फर्स्ट, जब जैसे ही वो 12 आदमी जोड़ देता है, उस दिन उसका जितना भी डिपॉजिट रहेगा, कैपिटल रहेगा, उसका 10% लगना शुरू हो जाएगा। वो एक सिलसिला चलता रहे, कुछ समय तक वो चलेगा, लेकिन देखेगा कि कंपनी कि अब बंदा जो है 12 आदमी जोड़ने के बाद में काम नहीं कर रहा है, तब उसको क्या कर देगा, उसका फिक्स कर देगा। फिक्स इतना कर देगा, तब उसका पैसा जितना भी रहे कैपिटल पे, उसका ट्रेडिंग जो वैल्यू रहेगा 10,000 रुपया का। 12 आदमी देने के बाद में अगर कोई भी आदमी मान लीजिए 1 महीना तक उसका समय रहेगा, 1 महीना के बाद में अगर वैसे चलेगा तो केवल 10,000 रुपया ही मार्केट पे यूज होगा, यानी 10,000 का ऊपर ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। 2 लाख रहे, 3 लाख रहे, लगेगा मार्केट में केवल 10,000। ये हो गया। तो उसका बाद में 12 आदमी के बाद में जब वो कोशिश करते करते 24 आदमी जब जोड़ लेता है डायरेक्ट पे, अपना डायरेक्ट पे जब 24 आदमी जोड़ लेगा, तब उसका परसेंटेज हो जाता है 11%। ट्रेडिंग रेशियो जो है 11% हो जाएगा। 11% हो जाने से अगर वो काम नहीं करेगा, मान लीजिए 24 आदमी जोड़ लिया, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, किसी को जोड़ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, वो छोड़ दिया है, तब उसका कैपिटल चाहे जितना भी रहे, मैक्सिमम उसका 20,000, 20,000 रुपया ही मार्केट पे लग जाएगा, और 20,000 का ऊपर में उसको प्रॉफिट मिलेगा। 20,000 का 80% यानी 16,000 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये कंडीशन है। और जैसे ही वो 24 आदमी क्रॉस करके एक समय पे 40 आदमी हो जाता है उसका डायरेक्ट पे, 40 आदमी, तब उसका ट्रेडिंग रेशियो हो जाता है 12%, 12%। तो मैं बताना चाहूंगा, कंपनी ने यहाँ सिस्टम बनाया कि मिनिमम प्रॉफिट का जो ट्रेडिंग रेशियो रहेगा 6%, और 6% से हाईएस्ट 12%, मैक्सिमम 12% तक ही आपका कैपिटल का इस्तेमाल होगा। ये कंपनी ने एक बनाया है। तो ये जो 24 से जब 40 पीपल, 40 आदमी जब जोड़ लेता है, तब उसका ट्रेडिंग रेशियो 12% पे रहेगा, और उसका जो कैपिटल रहेगा उस कैपिटल का 12% यूज होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर 40 का बाद में अगर किसी को नहीं देखा, काम नहीं कर रहा है, किसी को नहीं जोड़ रहा है, तब उसका हाईएस्ट जो ट्रेडिंग का जो मात्रा रहेगा वो 1 लाख रुपया रहेगा। चाहे 10 लाख रहे, चाहे 2 लाख रहे, 3 लाख रहे, लेकिन मार्केट पे 1 लाख ही यूज होगा। ये हो गया। और लास्ट दिया है कि 40 का बाद में जब 100 आदमी जोड़ लेता है, 40 का बाद में 40 से 41 करते करते अगर 100 आदमी तक पहुंचा देते हैं, कोई जोड़ लेता है अपना डायरेक्ट पे, तब उसका जो
ट्रेडिंग रेशियो बढ़ा ही रहेगा, लेकिन उसका जो कैपिटल का इस्तेमाल होने वाला जो पैसा होता है जो वो बढ़ जाएगा। पहले 1 लाख रुपया था ना, वो होकर 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख तक अपना मार्केट पे वो लगा सकता है। किसी का अगर 10 लाख है, अगर डिपॉजिट या अर्निंग करके उसमें उसका मेन कैपिटल 10 लाख हो गया है और वो 100 आदमी जोड़ लिया है, तो उसका 12% का हिसाब से 10 लाख हाईएस्ट उसका लग जाएगा मार्केट पे। ये नया एडिशन किया है कंपनी ने, तो ये बात हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक सा चीज, जो मूल चीज है YBY का बारे में, वो सब थोड़ा आप लोग को बताना चाहूंगा। YBY ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये शुरुआत ये कंपनी जो है अमेरिका का है, US का है। इसका हेड ऑफिस अमेरिका में है और ये अभी भारत सरकार के साथ 4 साल के लिए एग्रीमेंट में ये काम कर रही है। 4 साल के लिए। मैंने ये सवाल मैं कंपनी से खुद कुछ सवाल किए थे उनको, उन्होंने मुझे उसका जवाब में कुछ रिप्लाई दिया, मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये जो YBY मैं एक्चुअली उन लोग का जो हेड ऑफिस है USA है और उनका जो टीम है 500 टीम है और 500 टीम में आपका 800 एक्टिव वर्कर्स है, उन लोग का सक्रिय कर्मचारी है 800 और 9 लाख उनका दैनिक कर्मचारी है और प्रत्येक टीम में 2000 से अधिक सदस्य है। उन लोगों का टीम काम कर रहा है उनको ऑफिस में, जो ये US में है। और एक मैं मैसेज देना चाहूंगा, एक खुशी की बात, मैं कंपनी से पूछा था कि आप लोग का इंडिया में ब्रांच कहाँ पे है, इंडिया में ब्रांच कहाँ पे है, और मैं आसाम के होने के वजह से मैंने पूछा था कि आसाम में आप लोग का ब्रांच कहाँ पे है। आप लोग का मन में भी ये सवाल आया होगा, भाई इसका ऑफिस कहाँ है, क्या है, आसाम में या इंडिया में। तो ये सवाल मैंने पूछा था, तो उन्होंने मैसेज किया है कि बहुत जल्द वो लोग ब्रांच खोलने जा रहा है, वो हम लोग का ऊपर भी डिपेंड करेगा। लिखा है उन्होंने ये 2024 का नवंबर महीना से 2025 का मार्च के अंदर पे जो भी एरिया पे, जो भी इलाका में सबसे ज्यादा YBY का कस्टमर रहेगा, मेंबर रहेगा, वही पे ऑफिस लोग बनाए खोलेगा। ये जवाब दिया है उन लोगों ने। और दूसरा, YBY का मालिक का नाम जानना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग का आसाम का आदमी है ना, बहुत सारा चीज हम लोग बहुत वो करते हैं ना, मार्केट भी जाते तो बार्गेनिंग किए बिना कोई चीज हम लोग लेते नहीं है कि नहीं। तो सबका दिल में ही रहता है कौन है मालिक, कहाँ पे है, कैसा है। जब भी घुसे थे डर के घुस रहे थे ना। हाँ। तो YBY का पूरा नाम जो है, मैंने पूछा था कि YBY संपूर्ण नाम तो की, मैं अंग्रेजी में पूछा था, वो लोग जवाब दिया है कि YBY VC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है। ये VC ब्लॉकचेन, अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी या ये सब का चीज में ब्लॉकचेन बोल के जो होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये बहुत ही सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि कोई हैक ना करे, कोई चीज को वो ना कर बैठे। ये ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है इंटरनेट जगत में, तो जिसको किसी को पता होगा, बस ये समझिए कि ये सिक्योरिटी सिस्टम है। और YBY का मालिक का नाम जो है मिस्टर मार्को इनिगुएज, मालिक का नाम मार्को MARCO इनिगुएज INIGUEZ इनिगुएज उनका मालिक का नाम है। और मैंने पूछा था YBY मुख्य कार्यालय को, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जवाब दिया है YBY का मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस अमेरिका बोल के बोला है। और बताने वाला बात आप लोगों को, मैंने ये भी पूछा है कि आप लोगों को हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट के साथ में, सेबी का साथ और RBI के साथ में क्या एग्रीमेंट है। तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि सेबी और RBI के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन वो ऑन प्रोसेस है बोल के लिखा है, ऑन प्रोसेस है। और ये भी मैंने पूछा कि आप लोग का एप्स, मैंने ऐसा पूछा सवाल, मेरा जो पूछने का तरीका है कि आप लोग का एप्स प्ले स्टोर पे क्यों अवेलेबल नहीं है कि नहीं।
हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम लोग का मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं ना, तो मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिए हैं कि उन लोगों का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन बहुत जल्द आप लोग को प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन लोगों को प्रोसेस कर चुके, गूगल पे ऑलरेडी उन लोग सबमिट कर चुका है, ये बताया है। और दूसरा मैंने ये भी पूछा था एक मिनट, कि आप लोग का अंदर में वाईबी में जब कोई आदमी जुड़ता है तो उसका कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है? मेरा सवाल था ये कि जैसे हम लोग कभी कोई पॉलिसी खोलता है, कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका एक पॉलिसी कागज होता है कि नहीं, कोई प्रूफ होता है तो एग्रीमेंट। तो मैं उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत जल्द वो लोग केवाईसी करेंगे, इसमें सिस्टम करेगा। अंदर में वाईबी में जब कोई आदमी जुड़ता है तो उसका कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है? मेरा सवाल था ये कि जैसे हम लोग कभी कोई पॉलिसी खोलता है, कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका एक पॉलिसी कागज होता है कि नहीं, कोई प्रूफ होता है तो एग्रीमेंट। तो मैं उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत जल्द वो लोग केवाईसी करेंगे, इसमें सिस्टम करेगा। अंदर में वाईबी में जब कोई आदमी जुड़ता है तो उसका कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं होता? मेरा सवाल था ये कि जैसे हम लोग कभी कोई पॉलिसी खोलता है, कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका एक पॉलिसी कागज होता है कि नहीं, कोई प्रूफ होता है तो एग्रीमेंट। तो मैं उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत जल्द वो लोग केवाईसी करेंगे, इस सिस्टम करेगा। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ कारण से तकनीक कारण से ये बात रहा तो मेरा ही रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत जल्द। मैंने पूछा था कि आप लोग ना कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप लोग को चाहिए, ना कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है जब वाईपीआई में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत जल्द वो लोग हम लोग से केवाईसी भी कराएंगे, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा, तो सिस्टम वो लोग ला रहा है। तो ये मैं चाहूंगा कि मैं सोचा हूँ कि ये सब चीज आप लोगों के साथ थोड़ा साझा करूँ, शेयर करूँ, तो थोड़ा सा निश्चित हो जाएंगे। तो वाईपीआई का मकसद है 6 मिलियन कस्टमर इसमें बनाने का। अभी उनका 1 मिलियन कंप्लीट हुआ है, उससे भी ज्यादा हो चुका है। पहले हो चुका था जब हम लोग अरुणाचल में मीटिंग किया तभी 1 मिलियन क्रॉस किया था। अभी लगभग 2 मिलियन का आसपास इसका मतलब आंकड़ा जो है पहुंच गया है। और अभी हम लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वाईपीआई जैसे कंपनी को हम लोग कितना सपोर्ट करेंगे, कितना सहयोग करेंगे, इसमें काम करेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम लोग को प्रॉफिट देने वाला है। या आप हम लोग सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसमें काम कीजिए, ये बढ़िया। अभी तो सबका मैं समझता हूँ सभी खुश है। और मुझे एक अच्छा लगा पर्सनल, एक आदमी से भेंट हुआ हम लोग का गांव में। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था उस समय, तो एक भैया ने बोला कि बात करते हुए कि मैंने पूछा है तुम वाईपीआई में ज्वाइन हुआ है कि नहीं रे? तो टॉम चला रहा था। तो बोला हाँ भैया मैं ज्वाइन हुआ उसमें। तो बोला कितना तुम्हारा अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है? नहीं अभी तो मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है भैया, और इसी से ये वाईपीआई करके मैं अभी टॉम का इंस्टॉलमेंट भी भर रहा हूँ बोल के बोला। और टेंशन में था पहले, लेकिन वो बोला भैया जब से मैं वाईपीआई किया ना तब से मैं टॉम का इंस्टॉलमेंट भर रहा, किस्त दे रहा हूँ, टॉम कब किस्त दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, चाहे जो भी हो। और एक इंसान को मिला, वो भी बोला कि भैया मैं तो इसी से वाईपीआई से पैसा कमा के अभी मैं लोन भी चुकता कर रहा हूँ। मेरा बीबी जो क्या बंधन में क्या बैंक होता है ना, वो सबसे लोन लिया है ना, तो उसका लोन मैं देता हूँ बोल के बोला, उसका लोन का किस्त भी मारता हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत लोगों का इसमें भला हुआ है, लोगों ने बहुत सारा चीज इससे अपना समाधान पाया। क्योंकि हमको देखिए एक चीज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन कहावत है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट मनी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा का बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। भला काम सोचेंगे तो भी मनी ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। सब कोई भी काम आप करना चाहेंगे तो उसका पीछे पैसा ही चाहिए, अर्थ चाहिए। तो ये जो वाईपीआई सिस्टम जो है, हम लोग को ट्रेडिंग का
भले ही हम लोग ट्रेडिंग, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको ट्रेडिंग का बारे में पता है, शेयर मार्केट का बारे में पता नहीं, क्या करे क्या नहीं, क्या होता है, इतना सुनने का समय नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को YBY दे रहा है। भाई आप ट्रेडिंग आपको आता ना हो अलग बात है, आप हम पे इन्वेस्ट करें। YBY बोल रहा है कि मेरा में इन्वेस्ट करो, आपको मैं डेली इस प्रकार से एक प्रॉफिट आपको बना के दूंगा। ये YBY ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और खास तौर से हम लोग का जैसा जो साधारण आदमी जो लोग है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे हम लोग आते हैं, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। सबने बढ़िया से यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट डेली जनरेट करे, कमाई हो रहा है मैं समझता हूँ। और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग का है, हम सबका है। जितना इसको हम लोग सर्विस देंगे, इसका बारे में लोगों को बोलेंगे, ये कंपनी आगे बढ़ेगा। कंपनी का टारगेट उसको लोग चाहिए, आदमी चाहिए। कंपनी का मेन जो उन लोग का टारगेट है 6 मिलियन आदमी। उसका बाद में और नया से कुछ वो लोग फिर मार्केट पे लाएगा, सिस्टम को बदल देगा वो लोग, और बढ़िया कुछ वो लोग सोच के रखेगा। उन लोग को जो टारगेट है, सुनने को मिला है कि हांगकांग में ऑलरेडी वो लोग का कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग के यहाँ पे इंडिया पे 1 साल हुआ है उसका, और इंडिया पे ये YBY का शुरुआत 1 साल कंप्लीट हो चुका है। YBY मतलब कब मैंने पूछा था कब प्रतिष्ठा हुआ था, इसका शुरुआत कब हुआ था। टाइम उन लोगों ने बताया कि 7:06 पर तारीख तब 2023 का मार्च का 15 तारीख में शुरुआत हुआ था। ये उस समय से चल रहा है, तो अभी समय है। और आप लोग जितना इसमें तेजी से काम करेंगे, इसमें आप समय जितना देंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। जो आज हम लोग जो मंच पे जो देख रहे हैं भैया लोग जो है, कुछ माताएं भी है जिन्होंने काम करके यहाँ पे अचीवर बना है, E लेवल तक पहुंचा है। और हम लोग का पास में है मिस्टर अनिराम सर जी, जिन्होंने S लेवल, इसका जो हाईएस्ट अचीव जो लेवल है S लेवल तक पहुंचा है। तो आप लोग भी सभी इसमें पहुंच सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए पॉसिबल है, सबके लिए संभव है। आप लोग इसको जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, तब ये जाके रहेगा। कंपनी को जिंदा रखने के लिए काम करना पड़ेगा। एक बात को ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, इजी मनी, फ्री मनी, ये सब चीज निकाल दीजिए, काम कर दीजिए। बहुत से लोगों का माइंड सेट ये होता है कि पैसा आना चाहिए, फ्री आना चाहिए। अरे मुफ्त का पैसा खाना नमक हराम बोला जाता है कि नहीं। कर्म करे, कुछ करे। मैं नहीं बोलता कि आप फिजिकल वर्क करें कि बोले कोई जाके मतलब कुछ मतलब हार्ड वर्क करे, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। अपने ब्रेन यूज कीजिए, दिमाग यूज कीजिए, इसके लोगों को पहुंचाना है। देखिए टीवी पे आप लोग देखते हैं एडवर्टाइज, हम लोग एडवर्टाइज बोलते हैं, विज्ञापन जो बोलते हैं। क्या करते हैं कंपनी लोग, कितना रुपया खर्चा करके वो एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जो एडवर्टाइज होता है, उसके लिए कितना पैसा खर्च करता है, बताता है लोगों को कि मेरा प्रोडक्ट को भाई टीवी में दिखाओ, एडवर्टाइज बना के। क्यों करते हैं? वही काम आप और हमको करना है, वही काम। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? मैन टू मैन, आदमी से आदमी, एक से एक जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आदमी से आदमी तक हम लोग खुद को जाना होगा। उसके लिए रिवार्ड रखा है कंपनी ने, है कि नहीं? जो कमीशन हम लोग बोलते हैं, रिवार्ड एक दिया है कि आप मेरे लिए किसी एक आदमी को लाते हैं तो उसका भी एक आप लोग को रिवार्ड दिया जाएगा, उसका भी कुछ आपका कमीशन मिलेगा। तो ये उस हिसाब से आप लोग अगर मैदान पे, फील्ड पे लग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा इनकम एक अलग से वो ले पाएंगे आप लोग। और इसका एक प्लस पॉइंट देखिए, एक अच्छा मुझे क्यों लगा, मुझे ऐसा काम थोड़ा अच्छा लगता है जहां पे मुझे लोगों का साथ बात करने का मौका मिलता है, लोगों का पास जाने के लिए मौका मिलता है। मैं वैसा काम ज्यादा अच्छा पाता हूं, मेरा पर्सनल हुआ। जैसे आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोग अपना ही गांव में, अपना अपना जगह पे, गांव नहीं अपना सिटी हो, जहां जहां पे रहते हैं, आप लोगों ने जब से YBY किया है उस दिन से कहीं ना कहीं जिस आदमी के साथ आप लोग बात उतना नहीं कर रहे थे, किसी के साथ आप लोग देखने से भी उतना मतलब हाय हेलो नहीं कर रहे थे, या किसी का घर नहीं जा रहे थे, लेकिन YBY में जब से घुसे हैं, जो आदमी से बात नहीं कर रहा था उस आदमी से भी आप लोग बात करते हैं। उसको भी
भाई जाके कुछ बोला है, चाहे आपका टेंडेंसी, आपका निश्चित स्वभाव जो भी हो कि वाईबीआई के बारे में बात पहुंचाना है, लेकिन जाके बोला तो बात तो क्या, उसे क्या हुआ, आदमी के काम से बड़ा एक रिलेशन बना है कि नहीं बोले। एक आदमी के पास जाके बोलने का मौका तो मिला कम से कम, जिसका घर में नहीं जा रहा था उसका घर भी मैं जाके पहुंचा, उसको भी बोला भाई ऐसा करो ना, ऐसा ऐसा चीज है। तो ये लोगों के साथ हम लोग को कनेक्ट होने का भी एक मौका दे रहा साथ में। पैसा तो है, एक कहावत है, मतलब आदमी को अपना लीजिए, मानिए अपने आप आपका आना शुरू हो जाएगा। आदमी को अपना कीजिए, वाईबी वही चाहता है, उसको चाहिए आदमी। आपका पैसा कितना है वो वाईबी देखने के लिए नहीं है। वाईबीआई का जो सिस्टम जो बनाया है वो बोल रहा है कि मुझे लोग चाहिए, लोग चाहिए। तो मैं आगे का थोड़ा सा जो वाईबीआई के बारे में हो, चाहे आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट कराने के लिए हमारे जो साथी एंकर है, मैं बाइदो को बुलाना चाहूंगा। मैडम हाँ, अभी का जो ये इवेंट जो चल रहा है, ये मीटिंग जो चल रहा है, ये यूट्यूब में अभी लाइव है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आगे का थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट कराने के लिए हमारे बाइदो जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ। বাইদেউ জি নেকি? কি খবৰ? ভাল। লিংকটো গম পাইছে, নিজৰ নিজৰ ধুনীয়া চেহেৰা চাব বিচাৰিছে যদি লিংকটোত ক্লিক কৰিব, কাৰণ তাত আমাৰ গোটেইখিনি লাইভ দিয়া আছে। কি দিয়া আছে? আৰে কথাই নাপাতে, বৰ হৈ গ'ল নেকি? বৰ হৈ গ'ল। তেনেহ'লে মই এই সাংবাদিক মাতো, তেওঁ লাহে লাহে আহি পেলাই আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰি দিব, হয়নে? নহ'লে এতিয়া হেমন্ত দাক জপিয়াই দিব কওঁ নেকি ইয়ালৈ, হয়নে? চব আছে ইয়াতে। অ'কে, চ' এতিয়া গান গাম আমি আকৌ। কোনোবাই গান গাব ইয়াতে? প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছে চাগে, এতিয়া এঘণ্টা হ'ল মই যোৱা। মই ভাবি আছিলো যে কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিব গান। কোনোবা আছে চাগে ন? ডিচাইড কৰিছে? কোনফালে? তাৰ পৰা জপিয়াই আহক, আমাক ছিংগাৰ লাগে। ইমান দূৰত যে মই দেখাই পোৱা নাই। তললৈ আহি যাওক, আজি গান গাম। বাৰু আজি মেডাম সকলো আছে, ছাৰ সকলো আছে, আপোনালোকৰ কাৰণে গান গাওঁ। আপোনালোকে লিয়ে গানা নাই, তেওঁলোকে আনচাৰ নিদিয়ে, আপোনালোকে ক'ব লাগিব। ময়ে গাওঁ নেকি? যেতিয়ালৈ আপোনালোকে কিন্তু ডিচাইড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে গাব লাগিব, নহ'লে নাচিবলৈ মাতি আনিম নিজে চাই চাই। এনে লাগিছে বাৰু, বহুত কেইগৰাকী লাগিছে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলত নাচে চাগে অলপ চলপ। ময়ো নাচো নহয়, মাজে মাজে বনাব লাগে নহয়। বাৰু কি গান গাম? কিবা জানা গানে গাব লাগিব। চেণ্টি গান গাম নেকি? দুখ চুখ লাগিব নেকি? নে অলপ ফূৰ্তিৰ গান গাওঁ? ফূৰ্তিৰ গান, ফূৰ্তি লাগে। কি নাম? আকবৰ হুছেইন। আকবৰ দেই, জলালুদ্দিন আকবৰ ইয়াতে আছে আজি। অ'কে, তেওঁ কৈছে মোৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক। মানে মোৰ পৰিচয়টো হৈছে, মোৰ নাম দীপশিখা শৰ্মা, আৰু মই প্ৰফেচনেলি এগৰাকী এংকাৰ হয়, হোষ্ট মানে ঘোষিকা। আৰু মই 11 বছৰ ধৰি মই এই কামটো কৰি আহিছো। বহুত বয়স যেন লাগিছে নেকি 11 বছৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে? নহয়, কিন্তু ইমান বয়স নহয়, মই সৰুৰ পৰা এংকাৰিং আৰম্ভ কৰিছিলো, সেইকাৰণে দেই নাভাবিব, ভুল নুবুজিব, মই ইমান বয়স হোৱা নাই, বুঢ়ী হোৱা নাই এতিয়ালৈ। কিন্তু 11 বছৰ ধৰি মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছো, আৰু এতিয়া মই YBYৰ লগত জড়িত হৈ আছো। চ' মই এগৰাকী এংকাৰ, আৰু মোৰ নাম দীপশিখা শৰ্মা। আজি এই মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন। আৰু আপুনি হয়তো দুই এটা কেতিয়াবা ভিডিঅ' দেখাব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম মানে মতলব এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই ব্লগিং কৰোঁ, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বুলি কয়। চ' মই চাইডত এগৰাকী কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, লগতে মোৰ মাৰ বিজনেছ মই চাওঁ মাজে মাজে, সেইটো মোৰ কাম হয়। অল ৰাইট, চ' গানলৈ আহোঁ এতিয়া। গান কি? গান
বড়ো বড়ো গান চিন্তা কৰিব লাগিব বাগুৰুম্বা ঐ বাগুৰুম্বা না 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 ঐ বাগুৰুম্বা এটাই ৱৰ্ড জানো অং নংখ মজং মানে কি আপোনালোকক সকলোকে কলো দেই অং নংখ মজং মানেনো কি মানে কি কিনো মোক যদি ধুনীয়া ল'ৰা এটাই মিনিংটো কয় মোৰ খুব ভাল লাগিব কিন্তু কি হয় মিনিংটো কোনে ক'লে বাৰু থিয় হৈ কোৱা জোৰকে কোৱা চবে শুনাকে কাক কৈছা মোক কৈছানে মিনিংহে কৈছা মোক কোৱা নাই কেনচেল বেলেগ এগৰাকী আহা তেওঁৰ চাগে ৱাইফে চাই লাইভ চলি আছে ন ভয়ো লাগে নহয় ভয় লাগে আজিকালি যেনেকেহে ধৰিব আহি কিয় কলি বোলে এনেকে নহব অলৰাইট চ' বড়ো গানটো মই গালোৱে এতিয়া কি লেংগুৱেজত গান গাম আৰু কি ভাষাত নেপালী মায়া নৰুৱাও মন ভাৰী নগৰ মনক সুৰ বঞ্চি শুনি বচন ইমুতো এইখিনিয়ে জানো বাকীখিনি নাজানো এনেকে নাজানা ভাষাত কিয় গান গাব দিছে বাৰু অসমীয়া গাম অসমীয়া কৈছে নহয় এইফালে আজি মই সকলো দাদা মাসকলক এটি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ যিটো গ্ৰুপ আছে YBY যিবিলাক গ্ৰুপ বনোৱা হৈছে তাতে আপোনালোকক ইউটিউবৰ যিটো লিংক আছে সেইটো দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এতিয়াই পাৰে যিমান পাৰে নিজৰ লগৰ বন্ধুসকলক এই লিংকটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তেওঁলোকে লাইভ চাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছআপৰ পৰা অকমান এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক নিজৰ লগৰ বন্ধুসকলক তেওঁলোকে আজিৰ এই মিটিংখন তেওঁলোকে লাইভ চাই থাকিব পাৰিব ধন্যবাদ আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে চবকে এবাৰ জুম কৰি দেখুৱাওক যাতে মানুহে গম পায় তেওঁ আৰু বহি আছে তাত হয়নে ধুনীয়া হৈ আহিছে সাজি কাচি আহিছে বাইদেউগৰাকীক চাওক একদম পিংকত একদম মানে লাগিছে আৰু গুলপীয়া পৰি যেন হয়নে তো এনেকে ধুনীয়াকে আহিছে সকলোবোৰ অসমীয়া গান গাব লাগে নহয় অসমীয়া গান এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ কাৰণ মই অসমীয়া হয় অলৰাইট কি অসমীয়া গান গাওঁ যিটো মই নৰ্মেলি গাওঁ খুব ভাল পাওঁ মই এই গানটো মাজুলী সকলো ৰেডি নে মই গাওঁ নে বিজিটো নহয় ৰিণিকি ৰাঙলী বেলিতি জিলিকে মাজুলীৰে জেঠৰে জুৰুলা খাওনে খহুৱা এইটো কৰক আকৌ বনগীত হেয়াই দেহি সপোনৰ ৰাগী হে দুচকুতে কিনো চতিয়ালি জিকিমিকি ৰদালি আহিবিনে বেলি কঠিয়াতে সোণগুটি ভাওনাৰে আখৰং নকৰিবা সেমেকা বিলাপৰে চকুলো মচিলোৱা লিগাঙৰে ধুলীয়া ভাগৰি নপৰিবা বাকী আছে বহু সাধু কথা হেৰিবি কাছে বৈ থবি ভনী হে আহি আছে ৰঙা বেলি আজি জিকিমিকি ৰদালি উমলিব বেলি কঠি আৰু বাকীখিনি পাহৰি গলো অলৰাইট ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি দেই মোৰ কাৰণে থেংক ইউ এতিয়া আই থিংক কনফিডেন্স আহিছে কোনোবা আছে ইয়াত গান গাবলৈ আছে বাইদেউকে গুৱাই দিম নহ'লে একদম ৰঙা লিপষ্টিক লগাই কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক
হয়নে তেওঁৰ কাৰণে এবাৰ ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি আৰু বাকী কেইগৰাকীৰ কাৰণে নহ'লে মোক বেয়া পাই যাব আকৌ বাৰু আৰু কোন আছে ইয়াতে নে লাষ্ট কৰিছে আৰু কোন আছে মই একচুৱেলি লাইটটোৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই কোনোবাই যদি হাত দাঙিছেও কোন আছে আৰু কোনোবাই একচুৱেলি দাঙিছিলে মাজতে মই বুলি ক'ত মই গাই থাকিম নেকি ইয়াতে বোলে আকৌ কোনোবা আছে নেকি নহ'লে ময়ে মাতি আনিম আকবৰ আহিব হয়নে আহিব আহিব আকবৰৰ স্মাইলটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেই বৰ ভাল লাগিছে দেখাত এইয়া মাতি দিলে আহি যায় আকৌ এই নাম গ'লেই ভুল দেখিছে চ' আকবৰে আজি আমাৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া গান গাব আকবৰে গাব জাপানীজ লেংগুৱেজত গান গাব জাপানীজ ভাষাত কাৰণ নোৱাৰিব নেকি ক'ৰ পৰা মই বিশ্বনাথ আছাম বিশ্বনাথ গহপুৰ গহপুৰ বৰ ধুনীয়া জেগা হিষ্টৰিক জেগা হয়নে কি গাবা হিন্দী গান এটা দেই আকবৰৰ ফালৰ পৰা অলপ অকমান গাম আৰু मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है এই চান্দ কা টুকৰা শুনো এনেকুৱা ধুনীয়া গান গাইছে আকবৰ প্লিজ খিৰিকী ক'ত আছে খিৰিকী ঘৰত আছে ন সেইটা বৰ্তমান নাই ইয়াত খিৰিকীত কোন আহে এনেকুৱা চান্দ কা টুকৰা এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি বাৰু বেলেগ কেতিয়াবা কম আৰু এতিয়া ক'ব নোৱাৰে দেই মানে কোনোবা চিক্ৰেট নেকি গান কোন গাইছিলে বৰ্তমান চিক্ৰেটে আৰু বিয়া পতা নাই মানে নাই পাতিব বুলি ভাবি আছে মিনিংটো এও সুধি দিও নেকি অংনংখা মজং মানে কি মই তোমাক ভাল পাওঁ থেংক ইউ ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ মাজত এগৰাকী বৰ মৰম লগা ছোৱালী আছে তাই গান গাব তোমাৰ নামটো কি প্ৰিয়ল কুমাৰী ছা চ' প্ৰিয়লে আমাৰ মাজত গান গাব এতিয়া চ' কি গান গাবা कासे की खाई बपन चांद को सिका कासे की खाई बपन चांद को सिका ओके आरंभ কৰি দিয়া कासे की खाई बपन चांद को सिक्का मैं तेरी रानी तो हुकुम को इका ना देरो ना तने करो के मेरो अगर बोली तुम्हें और मेरे गाके रखो घेरो বঢ়িয়া থেংক ইউ ভেৰি মাছ তাই চকলেটৰ কাৰণে ৰখি আছে কাৰোবাৰ হাতত আছে নেকি পিছত আমি দিম দেই থেংক ইউ বাই বাই মোক দুটা মাইক লগা হৈছে আৰু এতিয়া ন বাৰু আৰু কোনোবা ইমান সৰু ছোৱালী এজনী আহি গৈছে আপোনালোকৰ মাজত কোনো নাহে কোনোবাই মিমিক্ৰি কৰিব জানে নেকি মিমিক্ৰি নাজানে তো মই আপোনালোকৰ মাজত আহো নেকি কথা পাতিবলৈ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলে লিংক অল ৰাইট চ' কথা পাতো ওচৰলৈ গৈ আজি ইমানবোৰ মানুহ আহিছে ইয়াত কিমান মান মানুহ হ'ব বাৰু কিমান মান হ'ব 600 पक्का ने आंसर लॉक किया जाए पक्का ने दादा लिंक शेयर কৰি আছে নেকি লিংক শ্বেয়াৰ কৰি আছে বঢ়িয়া এয়া মই এও খুদিম হেল্ল' বাইদেউ ক্লাছ কৰিছে নহয় ক'ৰ পৰা আহিছে
বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি চবেই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে নেকি কোন কোন আছে ইয়াত গহপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথৰ পৰা অ আধা আধা দেখোন বহুত মানুহ আছে মানে সকলোবোৰ ফেমিলি নেকি একেলগে আহিছে দাদাও কেমেৰাৰ দাদাও দাঙি দিছে হাত চবে দাঙি দিছে অ'কে আৰু কৰ পৰা আহিছে মানুহ হা ধেমাজিৰ পৰা এওঁলোক আহিছে ধেমাজি কোন কোন বাপৰে আপুনিও লাহেকে দাঙিছে দেই এই চাংমাদাৰ লগত একদম মিলি যাব একদম লাষ্ট আপোনাৰ নাম কি প্ৰণৱ পেগু মই স্পীডতটো কোৱা নাই কোৱা নাই তেওঁ অলপ বেছি ফাষ্ট কৈছে অলপ কম্পেনচেট কৰিবলৈ মানে নাই মই ফাষ্ট হয় প্ৰণৱ দা আপুনি কি খাই ভাল পায় মই গাহৰি মাংস ইয়াতে সকলোৱে গাহৰি মাংস ভাল পায় নেকি কোনে ভাল পায় মাত্ৰ এইখিনি মেইন মানুহগৰাকীয়ে হাত দাঙাই নাই তেওঁ নাদাঙিলে কেনেকে হ'ব তেওঁ প্ৰথমতে কৈছে আৰু গাহৰি কেনেকে বইল কৰি খায় নে ভাজি খায় বইল কৰি পিনি লাই শাকৰ পৰা উফ বৰ টেষ্টি এইটো বৰ বঢ়িয়া বস্তু হয়নে আৰু আপুনি আহিছে ধেমাজিৰ পৰা আৰু আপুনিও আহিছে কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান ধেমাজিত মাৰ্কেট ভালে এতিয়া যিমানখিনি ইয়াত দেখা পাইছোগে চব ধেমাজিৰে হয় চব নহয় বিশ্বনাথৰ চব কেনেকে হ'ব মোৰ আন্দাজ পাঁচফালে বোৱাখিনিতো ধেমাজিৰে হয় আচ্ছা এটা কম্পিটিশ্যন কৰি দিওঁ যোন ধেমাজিৰ ন এটা ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বজা যোন ধেমাজিৰ জোৰকে বজাই দিয়ক এতিয়া যোন বিশ্বনাথৰ হয় তেওঁলোকে ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি ধন্যবাদ থাকিল মই প্ৰথম ধেমাজিৰে হয় কিন্তু মই ধেমাজিত নাথাকো মই হয় কামৰূপৰে মই চাংচাৰিত তেওঁ টিম চেঞ্জ কৰি লৈছে ক'লে কোনোবা বুজি নাপাব পাৰে মই কামৰূপৰে থাকে চাংচাৰিত থাকে